अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि खून कैसे सफ़ेद होते हैं। एक शोहर जिसकी बीवी, जिसका बेटा और उसकी बेटी उसको कत्ल कर देते हैं। ना सिर्फ कत्ल करते हैं बल्कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक नाले में फेंक देते हैं। ये वाक़या है क्या, कैसे खून सफ़ेद होता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना रायविंड सिटी के इलाके में शोहर जो है वो बीवी के हाथों कत्ल होता है और उसकी मदद करने वाला उसका बेटा और उसकी बेटी भी है। एक और मुलजिम है, उसका रिश्ता क्या है इनके साथ। ये मुलजमान जो गिरफ़्तार हुए हैं उसकी बीवी है, उसकी बेटी है और एक बेटा है और एक और शख्स है, एक और नौजवान है जो कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस होता है। मुलजमान से पूछते हैं कि ये वारदात इन्होंने किस तरह से की, क्या मुहर्रकात थे, कत्ल करने की वजह क्या थी। बीबी क्या नाम है तुम्हारा? सुमेरा बीबी। सुमेरा बीबी जी। कितने दी रहने वाली है? मैं इत्थों दे रायविंड दे रहन वाली, मेरी इत्थे शादी हुई। अच्छा, शादी इत्थे हुई सी जी। ते तेरा पहले कित्थे सी घर, माँ-बाप कित्थे रहंदे मेरे सन? अम्मी हुनी भाई फिर रहंदे ने, मैं उत्थे भाई रहंदी फिर सी। कितना अरसा हो गया शादी ਨੂੰ? शादी ਨੂੰ 22 साल हो गए ने। 22 साल हो गए ने। ते जी। कितने बच्चे ने? मेरे 8 बच्चे ने। 8 बच्चे ने। जी। कितने बेटे ने? मेरे 3 बेटे ने, 5 बेटियां ने। 5 बेटियां ने। ते शोहर की करदा सी तेरा? चाय ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। की करदा सी चाय दा? चाय चाय दी दा- दुकान सी? ਜੀ ਚਾय ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, अड्डा लाया होया सी। ਜੀ ते रिश्तेदार भी सी? शादी होने तो पहले कोई रिश्तेदारी भी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ कोई रिश्तेदारी नहीं सी। ਨਹੀਂ की वजह हुई, कत्ल क्यों कर दिता ਉਹਨੇ? ਬਸ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ की मसला सी? ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ बेटी? ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ 14 ਲੱਭਾਂਗਾ। ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ- ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਕੂਲ- ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਏ? ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਸਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਬਸ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆਤਿਫ। ਕੌਣ ਹੈ ਆਤਿਫ? ਆਤਿਫ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ? ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਅੱਛਾ। ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਵਾਰਦਾਤ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਆਤਿਫ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ। ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੱਜ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੋ ਘਰ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਸੀ। ਨੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੋ- ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ? 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਹਾਂਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ FIR ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? FIR ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਜੀ। ਦਫਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਫਨਾਇਆ। ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 4 ਦਫਨਾਇਆ। ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੂਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਨ? ਐਨ ਦੱਸਣਾ time ਕਿਹਦਾ ਤੇ- ਸੀ? ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਮਾਗ? ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ।
ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ- ਆਇਆ? ਬਸ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪ ਵੀ ਉਸ- ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ। जी माननी है इस गल नूं? हाँ जी। क्या नाम है भी आपका? मरियम। मरियम, कितनी हाँ जी। उम्र है? 14 साल। 14 साल? हाँ जी। तो आपने अपने अब्बू को मार दिया? जी। कैसे? सर उनके हाथ पकड़े थे। हाथ पकड़े थे? हाँ जी। किसने ये कहा था कि अब्बू को मार देना? सर लड़ाइयाँ झगड़े हैं? मम्मा के कहने पे। मामा के कहने पे? तो ये लड़का कौन है? सर फ्रेंड। फ्रेंड है? कैसे फ्रेंड बना तुम्हारा? सर ऐसे ही बस हम दोनों का आसपास घर था तो हेलो आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप होगी। स्कूल गई हो कभी? जी। कौन सी क्लास तक? 8 क्लास तक। 8 क्लास तक? पढ़ी है। हाँ तो क्यों अब्बू क्यों मना करते थे, पता है कुछ तुम्हें? नहीं सर। वो सही मना करते थे? हाँ जी। तो अम्मी की किस बात पे और लड़ाई होती थी? बस ऐਵੇਂ ही घर की बातों पे लड़ाई। किस बातों पे? तुम्हारी शादी को लेके कि और बात भी थी कोई? नहीं, मेरी शादी का मामला ख़त्म हो गया था, बाद में इनका आपस का मामला था। क्या आपस का मामला था? आपस से सर वो इनकी बातें आपस की प्राइवेट, उन्होंने मैंने प्राइवेट क्या, घर में तुम नहीं रहती थी? सर वो ऐਵੇਂ ही बस कभी खाने पे लड़ाई हो गई, कभी घर के कामों पे लड़ाई हो गई, कभी अच्छा। बच्चों के लड़ाई झगड़े पे लड़ाई हो गई। ये बस इनकी ऐसी लड़ाइयाँ थी। अच्छा, तो घर में कोई तुम्हारे चचा या तुम्हारे ताया आते नहीं थे इनकी लड़ाई ख़त्म करवाने? नहीं सर। मारता भी था वो? पापा मेरे? हाँ। कभी कभी। मारते थे? हाँ जी। कितना को मारते थे? हमें नहीं, वो इनको बस मारते थे कभी कभी। बच्चों को, आपके बहन भाइयों को नहीं मारते थे? वो बस जब ज़्यादा गुस्सा आता था तब उनको डांटते थे। डांटते थे? हाँ जी। अच्छे थे अब्बू? हाँ जी, बहुत अच्छे थे। तो फिर मार क्यों दिया? सर गलती होगी। हैं? सर गलती होगी। वो क्या कहते थे, इसके साथ शादी नहीं करनी तुम्हारी? हाँ जी। तो तुमने कहा था कि मैंने शादी करनी? पहले वो मान गए थे, बाद में वो नहीं माने थे, फिर बाद में उन्होंने कहा था शादी नहीं करनी। फिर मेरा मामला ख़त्म हो गया था, फिर उनके आपस की लड़ाई झगड़े थे, अच्छा उनकी वजह से फिर गुस्से में आके हम इन्होंने कत्ल का कह दिया था। अच्छा है। इन्होंने अम्मी फिर ने कहा जैसे- था कत्ल जैसे- करना है? जैसे जैसे इन्होंने कहा था फिर वैसे वैसे किया था। तो पहले इन्होंने क्या किया था, नींद की गोलियां दी थी? पहले नींद की गोलियाँ दी थी उनको, फिर अच्छा। उसके बाद वो थोड़ी देर काम करते रहे थे, फिर वो सो गए थे। फिर आतिफ ने उनका गला दबाया था, मैंने और मम्मा ने इनके हाथ पकड़े थे और मेरे बड़े भाई ने उनकी टांगें पकड़ी थी। तुम्हारा दिल नहीं कांपा था बाप को मारते हुए? सर पता नहीं क्या हो गया था, क्या हुआ था? पता नहीं, अचानक से कुछ हो गया था, फिर हम सब इस काम में शामिल थे। हम्म। तो उसके सबसे बाद पहले एहसास हुआ था। किसने कब बताया था कि तुमने अब्बू को कत्ल किया है? तुम्हारी माँ ने बताया था, तुमने बताया था? मम्मा ने बताया था। किसको बताया था? पुलिस वालों को। पुलिस वालों को बताया था? हाँ जी। बाप को मारने वाले सफ़ाक बच्चे, एक बेटा है और ये बेटी है, और उसका ये दोस्त है बेटी का, और सब प्लान इसने किया बच्चों की माँ के साथ मिलके। इनसे आप पूछते हैं कि इन्होंने वारदात जो है वो किस तरह से की। क्या नाम है भी तुम्हारा? मेरा आतिफ नाम है। आतिफ? हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी मेरी 14 साल। 14 साल? ये लड़की को कितने अरसे से जानते हो? जी 1 साल से। 1 साल से? हाँ जी। किस तरह की दोस्ती है? जी पहले हम उधर रहते थे उनके मोहल्ले में, हमारा मैंने आसपास। कहा किस तरह की दोस्ती है? जी ये प्यार करते थे, तुम प्यार करते हो कि ये करती दोनों है? प्यार करते थे। उसकी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। घर वालों को पता था तुम्हारे? नहीं। नहीं पता था? नहीं। तो ये प्यार किस हद तक जा चुका था? कत्ल हो गया था। कत्ल हो गया? तो इसको क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे? जी शादी करना। तो घर वालों से बात की थी? जी नहीं।
फिर कैसे शादी करते हैं? ये कहते थे कोर्ट मैरिज है, क्यों? घर वाले राजी नहीं थे होते। तुम्हारे घर वाले? हाँ जी। अच्छा, अब बताओ कत्ल कैसे किया, क्या प्लान क्या बना और जी, किसका आइडिया था? सब बात सही बताओ। जी 2 महीने पहले से प्लान बन रहा था अच्छा। उसको मारने का। 1-2 दफ़ा पहले भी कोशिश की थी, जब उसको गोलियां नहीं थी दी गई तो उसको मारने की कोशिश की, वो मारा नहीं गया, वो भाग गया। उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, सारी फैमिली को बुला लिया। पहले कैसे कोशिश की थी? जी पहले उसको राड से मारने की कोशिश की थी घर में। जी हमने चारों ने। अच्छा, तो जख्मी हुआ था? हाँ जी, उसको एक राड उसकी कमर पे लगा था, जख्मी हुआ था, तो वो भाग गया था। अच्छा। तो उसने नहीं, वो हाथ आया, उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया सबको, और ये थाने में रिपोर्ट दरख्वास्त दे दी थी। तुम्हारे खिलाफ भी? हाँ जी, मेरे खिलाफ, अपनी बीवी, अपने बेटे और अपने बच्चे के खिलाफ। हाँ जी, तो इधर आके उसने दरख्वास्त दे दी थी, तो थाने वाले ने हमें बुला, उसने हमें पकड़ के ले आया था घर से, ठीक है। तो उसने आके इधर हमसे तफ्तीश की, मारा कुटा, तो फिर पैसे दे के सुलह हो गई थी हमारी। किसने पैसे दिए थे? जी घर वालों ने पैसे दिए। तुम्हारे घर वालों? हाँ जी। कितने पैसे दिए थे? ये अंकल, उनको पता, 20-25 हज़ार। किसको दिए थे पैसे? जी थाने वालों को पैसे दिए थे? हाँ जी, थाने वाले। बात के? जी उन्होंने छोड़ नहीं थे रहे, तो माफ़ी मांगने के उन लोगों ने कहा हम उनको दे देंगे, तो उन्होंने फिर उनको दिया, फिर उन्होंने उनको दिया, तो सुलह करवा दी थी। अच्छा। तो वो सुलह होगी, उसके बाद फिर ये अपनी नब्ज़ काट लेती थी, अपने नब्ज़ कट की। ये इसको मैंने कहा था मैंने आपसे बात नहीं करनी, तो इसने अपनी नब्ज़ कट की 2 दफ़ा। इसके हाथ पे बहुत गहरे घाव हैं, टाँके भी लगे हुए हैं। तो मैं डर गया था, मैंने कहा कभी इसको। और नब्ज़ के अलावा भी इसने कभी कुछ और नुकसान किया अपना? नहीं, नब्ज़ के अलावा नहीं, इसने अपनी नब्ज़ ही काटी है। 3-4 दफ़ा कोशिश की, कोशिश नहीं काटी है, बावजूद टाँके भी लगे हुए हैं, अभी भी जख्म है उसकी नब्ज़ पे। अच्छा। तो मैं डर गया था, मुझे लगा कभी ये इसको कुछ हो जाए और बाद में सारा कुछ मेरे ऊपर आ जाए। तो मैंने उसको कहा ठीक है, मैं तुमसे बात करता रहूँगा। तो फिर 2 महीने तक हमारा 2 महीने के फिर उस लड़ाई के बाद पहले बात प्लान बनता था, तो हम कोशिश करते थे उसको मारने की, तो मारा नहीं था जाता। उस दिन ये बाज़ार गए थे, पहले भी इन लोगों ने 2-3 दफ़ा उसको नींद की गोलियां दी थी, तो उसकी ना हालत कंट्रोल नहीं थी होती उससे, तो वो हर किसी के सामने अपने दुख शेयर करने लग जाता था। तो इसलिए हमने फिर इन लोगों ने उस दिन उस रात को उसको 12 गोलियां दी थी नींद की, तो वो फुल बेहोश हो गया था, उसको नहीं था पता वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे घर बुलाया, मैं इनके घर आ गया था। तो ये बैठे रहे थे, वो लेटा हुआ था, मुझे इन लोगों ने बिठा के कहने लगे कि अब क्या करना है। तो पहले ये कह रहे थे कि उधर पंखा पड़ा हुआ, उसके वो पंखा पकड़ के उसके सर के ऊपर वार करेंगे तो वो मर जाएगा। तो मैंने कहा इधर खून ही खून हो जाना, इस तरह ना करें। तो मैं एक दफ़ा भागने भी लगा था, मगर इनकी वालदा ने मुझे रोक लिया, हाथ जोड़ लिया। उसने कहा ना, अगर इसको तुम आज चले गए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, हमारे बच्चे रुल जाएंगे। तो मैं फिर उनकी वालदा के दबाव में आके, यानी कि मैंने फिर उनका गला दबाया था। इन्होंने पैर पकड़े थे, उन्होंने भी हाथ पकड़े थे। तो जब उसका गला दबाया तो मुझसे कंट्रोल नहीं था हुआ, उसका गला काफ़ी ताकतवर था, तो वो हिल रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं था हो रहा। फिर इनकी वालदा ने, मैंने रल कर उनका गला दबाया था और वो मर गया था। उसके बाद फिर मैं और ये भाई बाइक पे, इसकी मम्मा ने, मैंने और इसकी अपी ने, हम तीनों ने उसे बाइक पे बिठाया। बाइक पे बिठा के ये और मैं उसे के पास एक जगह नाला, उधर हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, तो उधर नाले के अंदर, मैंने इसको कहा था बाहर फेंक दे, मगर इसने कहा नाले के अंदर फेंक देते हैं। तो फिर उधर पानी का चलता हुआ नाला था, उसके अंदर हमने उसको फेंक दिया था। उसके बाद हम घर आ गए थे रात को। तो इनकी वालदा को मैंने कहा था कि हम अभी भी जाके थाने में बता देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, या रिश्तेदारों को बता दें हमारा फ़ायदा होगा। मगर इन लोगों ने कहा अगर हम बता देंगे तो हमें मरवा देगी पुलिस, से वो मार देंगे रिश्तेदार। इनकी इस बेटी ने कहा था कि वो हमें मार देंगे। तो इस वजह से फिर हम दो दिन गुजरे थे। तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिल गई थी पुलिस वालों को। वो हर गाड़ी वाले से पूछ रहे थे, हर किसी से पूछ रहे थे, मगर जब किसी का नहीं था, उन लोगों ने फेसबुक पे उसकी तस्वीर भेज दी। जब इनके रिश्तेदारों ने सब ने तस्वीर देखी फेसबुक पे, तो ये इसकी वालदा बच्चों को लेने जा रही थी सिपारा पढ़ने, मैं काम से घर आ रहा था। तो इसकी मम्मा और ये बच्चों को सिपारा पढ़ने लेने जा रही थी, तो इनके पास से पुलिस की गाड़ी गुजरी है। इनके रिश्तेदार पहले ही घर पर आ गए थे, ये भाई बाइक बनवाने गया था, इनको नहीं था पता। इनके घर रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए और इनके घर वो गाड़ी भर के गई थी पुलिस वालों की, ठीक है। वो उधर जाके खड़ी होगी, तो इनके पास से पुलिस गुजरी है। तो ये इन लोगों को, जो इनके पास से पुलिस गुजरी है, इनकी बेटी कह रही थी कि पुलिस हमारे घर जा रही है, मगर इसकी मम्मा ने कहा नहीं हमारे घर नहीं जा रही। तो पुलिस इनके घर ही गई थी, इनके रिश्तेदार भी थे। तो जब उनके रिश्तेदार थे, इनके घर पुलिस गई है, तो ये गली बदल के आए, बच्चों को नहीं था लेके आए सिपारा पढ़ने से, फिर ये गली बदल के आए हैं। गली बदल के आके इन लोगों ने देखा, तो ये नहीं गई, इसकी मम्मा घर चली गई थी। तो इसने कहा मम्मा मैं नहीं जा रही घर, मैं भाग रही हूँ। तो ये भाग कर इसने मुझे फ़ोन किया, इसने कहा मैं ऐसे ऐसे आ गई हूँ। तो मैंने कहा तुम कहाँ पर हो? तो इसने कहा मैं फ़लानी जगह पर हूँ। फिर मैं इसके पास गया, तो ये कह रही थी मैंने मरना है, मैंने मरना है। तो ये कहती थी मुझे प्लेट ला के दें, प्लेट ला के दें, या कोई कांच की बोतल, ये कुछ भी ला के दो, मैंने मरना है, मैंने ज़िंदा नहीं रहना, वो रिश्तेदारों ने मार देना। तो मैंने इससे समझू के, मेरे घर के पास एक वो घर बना हुआ है, उसमें कोई रिहाइश नहीं है, वो खाली घर ही बना हुआ है। तो मैंने इसको समझू के उधर बिठा दिया। मैंने कहा मैं काम पर जा रहा हूँ, तो मैं सुबह आऊँगा तो मैं कुछ करूँगा, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है। इस तरह अगर ये मैं ना इसके पास आता तो इसने जाके मर जाना था कहीं, इसलिए मैंने इसको समझा के वहाँ रुका। ये रात वहाँ पर रही, तो मैं काम पर चला गया था। तो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड थी, मोबाइल बंद हो गया था, घर वाले फ़ोन कर रहे थे, पुलिस वाले फ़ोन कर
रहे थे, मुझे नहीं था पता मेरा मोबाइल बंद है। तो फिर मैंने अपने दोस्त के घर आके मोबाइल चार्जर किया, चार्जर करके वो ऑन किया तो पापा का फ़ोन आया। तो पापा कह रहे तुम किधर हो? मैंने कहा मैं काम पर हूँ, मैं आता हूँ। तो इन लोगों ने कहा काम कहाँ पर कर रहे हो? मैंने कहा गोल चक्कर के पास। तो ये उधर चले गए, पुलिस अंकल और पापा ये उधर चले गए थे मुझे लेने। मैं तो उधर से आ गया था गलियों में से, मैं आके इसके पास रुका तो मैंने इसको देखा, इसने कुछ भी नहीं किया, मुझे हौसला हुआ। तो फिर मैंने इसको समझाया, फिर मुझे कह रही थी कि मैंने मरना है, मैंने मरना। फिर मैंने इसको समझो कि मैंने कहा मरना नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं। मैंने तसल्ली दी इसको, तसल्ली दे के तो मैं इसके पास से आ गया। इसने कहा अगर तुम नहीं ना मैं भी नहीं, मैंने मर जाना। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी घर से होके आता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। ये भूख बहुत लग रही थी। तो मैं वहाँ से निकला हूँ घर में से, तो मैं घर आया हूँ तो घर पुलिस वाले पहले खड़े हुए थे। तो उन लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे पकड़ के इधर ले आए हैं थाने ला के उन्होंने मारा मुरा। तो किसी ने कुछ नहीं बताया सारी रात। ये इनका बेटा और इनकी वालदा इनके पास रहे थे पुलिस वालों के। इन लोगों ने पुलिस वालों को काफ़ी जलील किया था, इन लोगों ने कुछ नहीं उनको बताया, वो इनसे पूछते रहते। तो आगे से इन्होंने बदतमीजी में बात की उनसे, इन लोगों ने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। जब पुलिस वाले मुझे अच्छा, इसके मरने का तुम्हें इतना डर है, इसके बाप को मारते वक्त नहीं दिल डरा तुम्हारा? अंकल जी उस टाइम पता नहीं क्या हो गया, गया उस टाइम क्यों नहीं पता? तो इस दफ़ा क्या होता है तुम्हें? नहीं इस दफ़ा नहीं, जब मुझे ये नब्ज काटती है तब तुम्हें बड़ा पता चलता है। ये उस टाइम पता नहीं क्या हो गया था। फिर ये पुलिस वाले मुझे इधर लेके आए, इन्होंने मारा है। तो मैंने इनको बताया कि हाँ लड़की इधर है, तो फिर ये लड़की को लेके आए हैं। तो फिर आप इसके साथ शादी करोगे? आप हाँ अंकल जी कर लेंगे। करोगे? ऊंची बोलो ना। हाँ जी कर लेंगे। जेल से वापस आ गए? हाँ अगर सजा हो गई तो जी, उधर सजा काट के हाँ जी फिर भी शादी करोगे? अंकल जी उसके अलावा और किससे कोई शादी नहीं करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्या बर्बाद किया हुआ उसका कि कोई शादी और कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने वो कहती मैंने किसी और से शादी नहीं करनी, मैंने मरना है। अच्छा, मरना है? हाँ जी, वो कहती मैंने तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करनी। तुम क्या कहते हो? अंकल जी अगर वो मेरी वजह से बचती है तो मैं उसकी जान बचाऊँ। अच्छा, उसके बाप को मार दिया तो उसकी जान बचानी है। बड़े आशिक हो तुम, रोमी हो बहुत बड़े। नहीं उस टाइम गलती हो, हैं? बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। उनकी वालदा के कहने पे उन्होंने गोलियां दे दी थी, तो उस वजह से ये काम हो गया। अगर गोलियां ना दी होती अपनी वालदा के कहने पे कभी कोई काम किया घर का? अपनी वालदा की बातें मानते हो? जी वालदा की बातें मानता हूँ, घर में जो वालदा कहते थे वो करता। वालदा को बताया था बस कि ये मैंने इससे शादी करनी है? बस ये वालदा की मैंने बात पहले की थी, मेरी बात सुनो, अपनी माँ की बात मानते थे इतनी? मानता था। क्या मानते थे? घर वालों की मर्जी के बगैर तुम शादी करना चाह रहे थे, क्या बात मानते थे? बस ये बात नहीं मानी बस उनकी। ये बात नहीं मानी। हाँ जी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जीशान जीशान जी। क्या करते हो तुम? सेलमैन करता हूँ, किस चीज़ की सेलमैन? अंडे वगैरह। अंडे वगैरह? जी कितने बड़े, सबसे बड़े बेटे हो तुम? जी। छोटे कितने भाई हैं? छोटे 2 हैं। 2 हैं छोटे? जी। तो क्या हुआ, ये प्लान कैसे बना लिया? बाप के कत्ल में तुम्हें हथकड़ियाँ लग गई, तो शर्म आती है? बस माँ और बेटी के पीछे लग गए। नहीं, माँ वो बेटी के पीछे क्या था? माँ और बेटी का पता था कि बहन क्या करना चाह रही है तुम्हारी? बहन में इनका इसके साथ लेन देन है, तो मैंने इनको नहीं, क्या इसके साथ चक्कर था। चक्कर था? जी। तो बहनों का चक्कर हो तो बाप को मार देते हैं? जी नहीं। हैं? नहीं बहनों के चक्कर में बाप को कत्ल करके फेंक देते हैं नाले में? नहीं। फिर ये एक दफ़ा तुम्हारा भी कोई चक्कर है कहीं? नहीं मेरा नहीं है। हैं? नहीं मेरा नहीं है। क्या बताया था माँ ने कि क्यों मारना बाप को? माँ ने बताया था कि ये मुझे रोज़ाना मारता है और अच्छा। रोज़ाना झिड़के वगैरह देता है, सुबह उठता है। तुम्हें तो और- नहीं मारता था? नहीं मुझे नहीं समझ। और फिर? सुबह उठते थे, अपना शाम को काम पे आते थे, काम से आके अम्मी मेरे को अपना झिड़के वगैरह देने पड़ते थे। फिर? ना कोई बात ना कोई वजह, और बातें सुनाने पड़ते थे। अच्छा। और अम्मी सुबह भी उठते थे और सुबह भी वैसा ही हाल ये था। तुम्हारी बहन की उम्र थी जो माँ उसकी शादी 14 साल की उम्र में करना चाह रही थी? नहीं उम्र नहीं है। हैं? तुम मैंने बड़े इनको- थे, तुम्हारी शादी करती या बाप की मर्जी के साथ शादी करती, और तुम माँ के साथ मिलके बाप को ही कत्ल कर दिया? इनको मैंने मना किया था कि हट क्या जाओ, मना किया था? कि इसके साथ अपना छोड़ दो ये चक्कर। तो क्या अम्मी तुमने ने मना कहा किया? बाप को मार दिया, मना तुमने क्या किया होगा? हैं? क्या मना किया तुमने? कि इसके साथ लेना देना छोड़ दो। अम्मी ने कहा था जब कत्ल ठीक किया है। तुम वहाँ पे साथ थे? जी। क्या तुमने क्या किस तरह से गला दबाया था तुमने? जी नहीं, मैंने पैर पकड़े थे। पैर पकड़े थे? जी। माफ़ी मांग रहे थे या वैसे कि पैर मारे ना वो इसलिए पकड़े थे? पैर मारे ना इसलिए पकड़े थे। इसलिए पकड़े थे? जी। फिर साथ जाके इसके फेंक के आए अपने बाप को, अपनी बहन के दोस्त के साथ जाके नाले में लाश फेंक आए? जी। हैं? जी। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 16,000। 16,000? किसको जी। देते थे पैसे? अम्मी को अप्पू को देता था।
अब्बू को देता था जी। सारे पैसे? जी अब्बू प्यार करता था? जी हैं? जी तुम भी करते थे? जी मैं भी करता हैं? हाँ जी करता है। कौन सा प्यार है? गला दबा दिया उसका, उसको मार दिया, जिसका बाजू बनना था तुमने उसको मार दिया तुमने, बताओ ना। गलती की है मैंने, हैं? गलती की है मैंने। ये तो उस वक्त सोचना था, अब तो कर दिया। रायविंड सिटी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मोहसिन फारूक साहब। इनसे पूछते हैं कि पुलिस ने किस तरह से एक नामालूम मिलने वाली लाश की शनाख्त की, मुलजमों को कैसे गिरफ्तार किया और अब तक जो मुलजमान से इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब, रायविंड के इलाके में एक डेड बॉडी मिलती है, नाले में उसको फेंका जाता है, किसी को नहीं पता किसकी लाश है और ना कोई मुद्दई है ना कोई उसका मकतूल का रिश्तेदार आपके पास आता है। डेड बॉडी मिलने के बाद सबसे पहले ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह से शुरू करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमें डेड बॉडी की कॉल मसूल हुई थी कि नाले में एक डेड बॉडी पड़ी है शख्स की। हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से हमने लाश को तहवील में लिया। उसके बाद हमने अपनी जो इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे PFSA और क्राइम सीन यूनिट जो टीम्स हैं उनको बुलाया। उसके बाद हमने वहाँ पे जो गांव है आसपास वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ की मसाजिद में ऐलानात कराए कि ये एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ से लोग इकट्ठे हुए, जो आसपास के देहात थे उनके लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आके शनाख्त किया, लेकिन किसी बंदे ने भी उसकी समझ में नहीं आई कि ये कौन है या कहाँ से ये बंदा बिलोंग करता है। ठीक है। उसके बाद डेड बॉडी की हालत ख़राब हो चुकी थी? नहीं, डेड बॉडी अभी ठीक थी, काबिल शनाख्त थी डेड बॉडी, लेकिन किसी ने शनाख्त नहीं किया उसको। ठीक है। जो आसपास के देहात थे उनके लोगों ने। उसके बाद हमने फिर उस पर कार्रवाई अपने स्टार्ट की। पुलिस ने अब पहले तो हमने वेट किया कि कोई शनाख्त हो जाए तो उसका मुद्दई जो उसका है वो मिल जाए हमें, लेकिन मुद्दई के ना मिलने फिर हमने अपनी मुद्दईयत में पुलिस ने उसकी FIR जो है नामालूम डेड बॉडी की नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो FIR वो अंदराज किया। उसका उस FIR के अंदराज के बाद हमने, क्योंकि हमारे जो अफसरान बाला है वो भी इस चीज़ के बारे में बड़े कंसर्न है कि अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसकी जल्द अज जल्द जो है हम शनाख्त जो है वो करें। उस जब हमने FIR हुई है उसके बाद हमने इसकी तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया, आपके प्लेटफॉर्म जो आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे व्हाट्सएप और जो फेसबुक है उन पे हमने, या अपना हमारा जो पुलिस के फेसबुक IDs हैं, व्हाट्सएप IDs हैं, ट्विटर है, उस पे हमने शेयर की इसकी। ठीक है। उसके शेयर करने के बाद दूसरे दिन फिर हमें शाम को कॉल मसूल हुई कि इसका जो मकतूल है इसके भांजे की तरफ से कि ये डेड बॉडी मिली है, इसकी पिक्चर शेयर हुई हैं, तो ये मैं आगे कंफर्म करना चाहता हूँ। हमने कहा कि आप आ जाएँ थाने। वो थाने आए, हमने उनको और पिक्चर्स दिखाई उसकी, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे मामू हैं। ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये रायविंड से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद हम जब उसने बताया कि ये इसके मामू हैं, हम उसको लेके इनके घर गए। वो मैं लेके हमारे वो घर गया। घर में जाके फिर हमने उसकी बीवी जो वहाँ पे मौजूद थी, बाकी छोटे बच्चे थे, इसकी बीवी से पूछगिछ की कि ये क्या मामला है आपका। उसको दिखाई पिक्चर, उसने भी शिनाख्त किया। उसने कहा कि मेरा जो मियाँ है वो तो 2-3 दिन पहले घर से गायब हुआ है और उसने मुझे कॉल की थी। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ घर से और मैं अब मेरा नंबर बंद रहेगा और मैं कोई काम के सिलसिले में जा रहा हूँ कहीं दूर, तो मैं कोई हफ्ते डेढ़ बाद वापस आ जाऊँगा। ठीक है। उसने कहा कि ये लास्ट जो मेरी और उसकी कन्वर्सेशन है मेरे हस्बैंड की और मेरी ये हुई है। हमें वहाँ उस पर कोई शक वगैरह हुआ, हमने उसको जो है ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। हम उसको अपने लेडी कांस्टेबल लिए अपने साथ और उसको जो है ना इन्वेस्टिगेट शुरू किया। वो किसी बात पे आ नहीं थी रही, वो यही कह रही थी कि ये उन्होंने कॉल की थी, मुझे तो नहीं पता वो किस तरह उनके कत्ल हुआ है, वो किस तरह उनकी लाश वहाँ तक नाले तक पहुँच गई है। जी उस जब फिर हमने दूसरे लोगों को, घर के दूसरे अफराद हैं, उनको से भी इंटेरोगेट करना शुरू किया, तो हमें लगा कि इसकी बात में ना कोई इख्तलाफ नज़र आया उसकी बीवी की बातों में, और उसकी बात बन नहीं थी रही। जिस तरह वो बयान कर रही थी उस तरह हकीकत नज़र नहीं थी आ रही। इसके बाद उसके दूसरे लोगों ने बताया कि इन मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा भी रहता था अक्सर बातों पर। उसके बाद हमने फिर देखा कि उसकी जो बड़ी बेटी है मरियम, वो घर से गायब थी। अच्छा। हमने उसकी बाबत उससे मालूम किया कि मरियम कहाँ पे है, तो उसका कोई वो रीज़नेबल आंसर नहीं कर सकी।
कि वो कहाँ पे है, वो उसने कोई बताया ही नहीं हमें। हम काफ़ी देर वेट करते रहे रात को, लेकिन वो घर पे जो मरियम है वो नहीं आई। तो फिर बात जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई, फिर हमें पता चला कि मरियम का एक जो आशना है आतिफ, और इस तरह इनका पीछे भी कोई क्लैश रहा है, इसके जो मरियम का वालिद है उसका और आतिफ का, क्योंकि मरियम जो है वो आतिफ से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका वालिद जो है वो उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उसकी शादी कहीं और पे की जाए, लेकिन उसकी वालदा भी यही चाहती थी कि उसकी शादी जो है वो मरियम की उसी से की जाए, आतिफ से की जाए। इनकी कुछ दिन पहले भी आपस में तू तकरार इसी बात पे हुई थी, और वो मामला लेकिन वो सुलझ गया, बात ख़त्म हो गई। अब जब मरियम को हमने ढूंढना शुरू किया तो मरियम हमें नहीं मिल रही थी। हमने काफ़ी वेट किया, आस पास से लोगों से भी दरियाफ्त किया, लेकिन मरियम का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद फिर हमने आतिफ जो है लड़का, उस पर जाके चेक किया उसके घर, तो वो भी घर से गायब था। ठीक है, अपने घर से वो भी गायब है। वो हमने जब ये दोनों बंदे गायब है तो फिर हमारा शक बढ़ गया कि ये मरियम और आतिफ का जो बता रहे हैं कि इनका आपस में है, लव अफेयर भी है, और ये दोनों मिल भी नहीं रहे, तो इनका इस कहानी से कोई ना कोई लिंक हो सकता है कि बच्ची अपने वालिद के जाने के बाद घर से गायब है और वो मिल भी नहीं रही और उसका आशना भी नहीं मिल रहा। हमने रात काफ़ी वेट किया, फिर हमने आतिफ के घर भी वेट करते रहे कि वो शायद आ जाए, लेकिन वो सुबह तक नहीं आया, वापस नहीं आया। हमने जो इसका बेटा है ज़ीशान, उसको भी रात को अपनी तहवील, उससे भी इंटरोगेशन किया, लेकिन वो भी अपनी माँ की बात कोई बार बार जो है ना उसी को दोहरा रहा था कि मैं घर आया तो मेरा वालिद वहाँ पे मौजूद था, और वो सारी चीज़ें कि मैं सो गया तो उसके बाद मेरा वालिद उठ के चला गया। मैं जब सुबह उठा हूँ तो मेरी वालदा ने बताया कि आपका वालिद तो चला गया है, और उसने मुझे ये कहा है कि मैं कोई 1 हफ़्ते तक वापस आऊँगा। ठीक। जब सुबह तक हम, लेकिन कोई बात हमें कोई प्रॉपर इसकी जो है वो चीज़ मिली नहीं है, तो हम कोशिश करते रहे। फिर सब सुबह हमने आतिफ का जो हमें उसकी वालदा जो ये है सुमेरा, उसका मोबाइल हमारे पास था, उस पर सुबह एक मैसेज आता है सुबह 7 बजे के करीब मरियम के नंबर से कि मैं जो है कराची जा रही हूँ और अब मुझे भूल जाएं, ये जो कत्ल जो है ये किसी और ने किया है, आतिफ ने नहीं किया। अच्छा। उस पर मैसेज आता है उसकी वालदा के नंबर पे, मोबाइल पे कि मैं अब कराची जा रही हूँ, मैं मर गई हूँ आपके लिए, और ये जो कत्ल है ये आतिफ ने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। ठीक है। तो जब हमने वो मैसेज पढ़ा तो हमें तो और ज़्यादा तशवीश हुई कि ये मैसेज इस बच्ची ने क्यों किया, रात से मिल भी नहीं रही और आतिफ का ही नाम भी ले रही है कि ये मर्डर आतिफ ने नहीं किया। तो फिर हम जब सुबह हमने जिस नंबर से मैसेज आया हमने उसको अपना ट्रैकिंग पे भी लगवाया, उसकी CDR वगैरह हासिल करके उसकी लोकेशन है, तो वो रायविंड में ही उसकी लोकेशन आ रही थी। ठीक है। हमने आतिफ के नंबर की जब लोकेशन ली तो उसकी भी रायविंड में ही आ रही थी। हमने आतिफ के वालिद को इंगेज किया और उसको कहा कि आतिफ कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो रात से काम पे गया हुआ है, वो सीलिंग का काम करता है और उधर गया हुआ है सीलिंग के काम करें। तो हमने पूछा वो आया क्यों नहीं, वो उसने जब उसके वालिद ने आतिफ के नंबर पे कॉल की तो उसका नंबर बंद था। ठीक है। उसका नंबर ऑन नहीं था। हमने उसके वालिद के पास बैठ के उसके वालिद ने कोशिश की लेकिन उसका नंबर सुबह जो है 7-8 बजे उसके वालिद के साथ उसका रब्ता हुआ जब, तो उसने कहा कि मैं जो है काम पे था, मेरा नंबर बंद हो गया था। तो उसने कहा कि घर कब आना है तुमने, उसने कहा कि मैं कोई आधे पौने घंटे तक घर आता हूँ। तो हम उसकी गली में जो है ना वो खड़े हो गए, वहाँ उसका वेट करते रहे। जब वो आतिफ आया तो हमने उसको वहाँ से पकड़ के जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने फिर सारा किस्सा जो है उसको बयान कर दिया कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। ठीक है। अच्छा मौजूद साहब, इसमें मेन मुलजिम जो है वो उसकी बीवी प्लान वो करती है? प्लान तो ये चारों मिल के करते हैं। ठीक है। कि उसको पहले इन्होंने गोलियां दी हैं खाने में मिला के, ठीक है, और खाने में गोलियां मिला के देने के बाद इन्होंने उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद जो ज़ीशान और आतिफ हैं वो उसी की मोटरसाइकिल पे उसको बिठा के उसको लाद के तो वहाँ पे नाले में फेंक के आते हैं। ठीक है। अच्छा, वजह जो है वो सिर्फ यही है कि वो बेटी की शादी जो है उसके साथ आतिफ के साथ करना चाहती थी माँ, या कोई और भी वजह है? वजह उसकी ये है, एक तो जो बाप है वो बच्चे बाप से अटैच नहीं थे वालदा की वजह से, कि वालदा उनको हर वक्त यही कहती रहती थी कि आपका बाप कमा के क्या लाता है आपके लिए, या आपकी परवरिश अच्छी नहीं कर रहा। उनको बच्चों के जहन में ये बातें रिपीट करते रहना, ये बातें डालते रहना, और बच्चों में और बाप में वो प्यार और वो मोहब्बत ही नहीं पैदा होने दी उसने। उसके बाद ये रीज़न भी थी कि वो चाहती थी अपनी हुक्मरानी,
घर में अपनी हुक्मरानी चाहती थी, वो नहीं थी चाहती कि उसका हामिद कोई ऐसी बात जो करे, जो ये बात करे उसके मुखालिफ वो कोई बात सुनना नहीं थी चाहती। वो कहती थी जो बात मैं करती हूँ वो ये भी करे। अच्छा, मकतूल जो था ये किरदार वाइज कैसा था? इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था, मेहनत मजदूरी करने वाला था? जो मकतूल है उसका हमने पूछगिछ की है, मोहल्ले से लोगों ने बताया उसके बारे में कि बड़ा ही सादा सा और बड़ा शरीफ इंसान था। मतलब अपना घर चलाने के लिए वो पहले एक टी स्टॉल पे काम करता है, दिन को, रात को फ्रूट की रेहड़ी लगा लेता है। तो मतलब वो मेहनती इंसान था, उसने हर तरह से जो है अपने ख़ानदान को इसको मतलब पालने में हर एफर्ट की है कि कोई भी इनको कमी पेशी ना आए, इसके बच्चों को इनकी तरबियत में कोई कमी ना आए। लेकिन वालदा का जो एक नेगेटिव चीज़ थी उसकी वजह से ये सारा उसको अपने उसके मियाँ की जान जो है वो चली गई है। अच्छा, इसमें अब जो गला दबाया गया वो किस चीज़ के साथ दबाया गया? कोई कपड़ा था या कोई रस्सी के साथ? इसको किस तरह से मारा, किस तरह से? वो कपड़ा जो इनके घर से बरामद हुआ है वो दुपट्टा था, जिसको आला कत्ल। जी सर, वो आला कत्ल वो दुपट्टा है जिससे उसका गला दबाया गया है। ठीक वो है, भी हमने बरामद कर लिया इनके घर से। ठीक है। अब मुलज़मान जो हैं वो चारों एतराफ़ भी कर चुके हैं, मानते भी हैं। तो जो मुकदमे की मुद्दई पुलिस बनी है, अब ये कोई पुलिस ही इसकी मुद्दईयत में रहेगी या कोई लवाहिकीन में से इसका मुद्दई बनेगा, भाई बहन कोई रिश्तेदार? इसका जो भाई है, जो मकतूल है उसका भाई है, वो अब इसका मुद्दई जो है वो बनेगा। माँ चाहती थी 14 साल की बच्ची की शादी उसकी पसंद के लड़के के साथ कर दी जाए, लेकिन बाप ये चाहता था कि अभी उसकी बच्ची की उम्र छोटी है, कम उम्र है, बड़ी होगी तो फिर शादी की जाएगी। इस हवाले से माहिर कानून क्या कहते हैं और कानून क्या कहता है, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। देखिए, ये बड़ा ही भयानक वाक़या आपने बताया है। सूरत हाल ये है कि एक तो इसका एक समाजी पहलू है कि हमारे माशरे में और हमारे मुल्क के अंदर कानून और समाज जो है उसका बड़ा ज़बरदस्त टकराव है। हमारा मज़हब जो है वो हमें कहीं और खींच रहा है, हमारा माशरा हमें कहीं और खींच रहा है और कानून हमें कुछ और सबक दे रहा है। समाजी मसाइल जो हैं वो हमारे मज़हब के साथ मैच नहीं हो रहे और ये दोनों हमारे कानून के साथ मैच नहीं हो रहे। ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन जब हमारी ज़िंदगियों में आती है तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। कानून हमें ये कहता है कि जब आपकी बच्चे की उम्र 18 साल हो जाए और वो बालिग हैं और वो अपना किसी भी जगह इस किस्म का रिश्ता जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा समाजी जो स्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में वो इससे बरक्स है। वो ये कहता है कि ज़ात पात का फ़र्क भी नहीं होगा। वो ये कहता है कि हमारा जो एक मुआशी स्ट्रक्चर है वो भी ब्रेक ना हो। वो ये कहता है कि कोई बेटा मेरा तो किसी लड़की को पसंद कर ले लेकिन बेटी नहीं कर सकती। और उसके अलावा फिर कानून जो है वो हमारे सामने है। तो ये तो एक समाजी इशू जो है हमारे सामने है। कानून की नज़र में तो बिल्कुल साफ़ वाज़े तौर पर जिसने भी जुर्म किया है वो उसको सज़ा मिलेगी और उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतें जो हैं वो मौजूद हैं और वो अपना काम करेंगी। अब इसके अंदर देखना ये पड़ेगा कि उस शख्स को कत्ल करने में अगर जिसने प्लानिंग की है तो दफ़ा 109 मौजूद है, दफ़ा 34 मौजूद है, और जिसने ये काम जो है मुकम्मल सरजद किया है, कत्ल किया है, तो 302 बिल्कुल अपने पूरे ज़ोर शोर से मौजूद है। अब इसमें जो मेन काम वो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है। जैसे जैसे वो एविडेंस इकट्ठी करेगी वैसे वैसे वो उन जो मुलज़मान हैं उनके गिरद घेरा तंग होगा और वो पकड़े जाएंगे। खाली किसी के इतराफ़ी बयान के ऊपर इस किस्म के मुकदमे का फ़ैसला अदालतें नहीं करती, क्योंकि वो हम जानते हैं कि इस वक्त वो ख़ातून और बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस की हिरासत में दिया गया बयान जो है वो अदलिया की नज़र में, कानून की नज़र में, कानून शहादत की नज़र में इतना जानदार नहीं होता कि उसके ऊपर रिलाई करके आप किसी को इतने सख्त मुकदमे में, क्योंकि जितना सख्त मुकदमा होगा उतनी सख्त क्राइटेरिया होगा उसकी शहादत का, उतनी हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होगी।
तो इसलिए खाली एक बयान के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि जो मुलज़िम उन्होंने पकड़ा है वो ख़ास की बीवी है या उस बच्ची का आशरा है, उसको सज़ा दी जा सकेगी। इसके लिए पुलिस को, फोरेंसिक को, इन्वेस्टिगेशन के बाकी जो इदारे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, मेडिकल का पूरा एक प्रोसीजर है, ये सब जब इकट्ठे मिलेंगे, शहादत एक से दूसरी मिलेगी आपस में, ज़बानी गवाहियाँ सामने आएंगी, तो उसके बाद इस केस का फ़ैसला अदालत जो है वो करेगी। देखिए, ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जब कोई जुर्म होता है तो उसके अंदर जो मुल्ज़मान इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी कोई ना कोई एक वजह जो है वो बना लेते हैं, और वो वजह ये बनाते हैं सम टाइम कि जी मुझे उस पर गुस्सा आ गया, उसने मुझे गाली दी थी, वो जो है एक लड़ाई की वजह थी, और या ये जिस तरह इस केस में है कि जी उस बच्चे की या बच्ची की उम्र जो है वो कम थी, इसी वजह से हमने ये जुर्म कर लिया तो शायद हमें कुछ उसमें रियायत मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नज़र में मुल्ज़िम और मुजरिम जो है वो बिल्कुल उस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने जुर्म का ज़िम्मेदार होगा अगर उसकी उम्र 18 साल है। अगर 18 से कम है तो सिवाय इसके कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत जो कम उम्र नाबालिग बच्चे हैं उनकी अदालतें या उनका प्रोसीजर एक अलहदा है, वहाँ पर अगर कोई ऐसा मुजरिम शामिल होता है तो उसको वहाँ पर ट्राई किया जाएगा और देखा जाएगा कि आया ये जुर्म जो है उसने अपने कम सनी या अपनी कम उम्री की वजह से, ना समझी की वजह से किया है, तो शायद उसे कुछ थोड़ा सा वहाँ से रिलीफ़ मिले। वो ये रिलीफ़ हो सकता है कि सज़ाए मौत से बच सकता है और उम्र कैद की सज़ा में आ सकती है, या उम्र कैद से कम होकर फिर भी संगीन जो है लंबी सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई एक बालिग शख्स अपनी जान बचाने के लिए ये वजह बनाए कि जी मैं ये शादी अब नहीं चाहता था, मैं बाद में चाहता था, या वो ख़ानदान में नहीं हो रही थी, ख़ानदान से बाहर हो रही थी, मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही थी, तो ऐसा कोई जवाज़ जो है वह कानून की नज़र में और अदालत की नज़र में कोई हैसियत नहीं रखता। ये सारी हमारी फ़र्ज़ी ज़ाती कहानियाँ हैं, हमारे ज़ाती जवाज़ हैं, इनको ना मज़हब सपोर्ट करता है और ना ही जो हमारा समाज है उसमें तो इसकी जगह हो सकती है, लेकिन कानून में इसकी जगह नहीं है। तो ऐसे मुजरिम को पूरी सज़ा मिलेगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि देखना पड़ेगा कि पुलिस इस किस्म के मुजरिम के ख़िलाफ़ क्या सबूत सामने लेकर आती है और अदालत में उनको किस तरह पेश किया जाता है, और फिर वो अदालत उस पर फैसला सुनाएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने दिखाया कि बेटी, बीवी और बेटा किस तरह से अपने बाप को कत्ल करते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इससे मुतल्लिका लोग क्या कहते हैं, सब कुछ दिखाया आपको इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।